जब हम मिट्टी की या खेतों की बात करते हैं तो सारी दुनिया इसके बारे में बात करते हैं कि पेस्टिसाइड और कीटनाशक ने कितना नुकसान किया है। यानी अगर भारत की ही बात ले लो तो 160 मिलियन हेक्टर्स ये एरिएबल लैंड है, एग्रीकल्चर करने वाला लैंड है। इसमें से अब तक का 11% के करीब यानी 16 से 17 मिलियन हेक्टर जो है पेस्टिसाइड से ख़राब हुआ है। तो अगर ये सब्जेक्ट में चला जाए तो हमको सारा दिन इसी के बारे में बात करने को मिलेगा। हमारा ये इंटरेस्ट है कि हम उसके बारे में बात करें जो हम कर सकते हैं प्रकृति के लिए, हम कर सकते हैं ये प्रोसेस को स्टेम करने के लिए, हम कर सकते हैं इसको रिवर्स करने के लिए। जैविक फार्म्स is a journey towards nature, is a journey that starts from right in the ground to rejuvenate soil, to recreate the kind of earth, वो मिट्टी जो हमको परमात्मा ने दी थी without pesticides, न कीटनाशक न पेस्टिसाइड, and how to rejuvenate the soil, जो मिट्टी ड्राई पड़ा है, मरा पड़ा है, उसके अंदर जान नहीं है, उस मिट्टी में जान कैसे डालें, माइक्रोब्स को कैसे लाएं और उस माइक्रोब्स का और उस न्यूट्रिशन का जो बेनिफिट है, जो तत्व है, वो अपने पेड़ों में, पौधों में कैसे लाएं ताकि वो जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको उनका फाइनल बेनिफिट मिले। मतलब प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर हमारी बीमारियों का इलाज छिपा हुआ है, हमारे तंदुरुस्ती का राज छुपा हुआ है, जो कि आज मिट्टी के अंदर ये ताकत नहीं रहने के कारण आज हमको वो तत्व, वो पौष्टिकता नहीं मिल रही है। तो हम शुरू करना चाहिए मिट्टी से। तो जैविक फार्म्स जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी वाला स्टोरी है, जहाँ पे इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारा जो मिक्स करके जो कॉन्सेप्ट बनता है कि ज़मीन के अंदर में सब तरीके का ऊर्जा हो, सब तरह की एनर्जी हो। It's a process of abundance. It's a process of prosperity. It's a process of sustainability for all the participants in the food chain. Whether it is the microbes, or it is the soil, or it is the birds and butterflies, or it is the farmer, or the yield that comes out, the consumer up to the end, you find the benefits of rejuvenating soil going right up to the end of the food chain. Right? It retains, regains and revitalizes the soil conditions, and that is where the whole story of nutritive, naturally nutrified and naturally nurtured food starts. And this is what we are trying to bring from Jaivik farms to the consumers. What I would like to say is that God has made, परमात्मा जो है यूनिवर्स के अंदर में सारा कुछ हमको दिया है। Wind, solar energy, there is so much of cosmic energy that we can trap. To make the best use of harnessing, capturing and trapping these God-given energies in order to create a biosystem, an ecology of benefits is what I'm trying to bring through Jaivik farms. It's not about just farming. The word Jaivik farm has been brought in to say we could do forestation, we could do agroforestry, we could do horticulture, we could do agriculture, we could do simple ground level farming. It's a mixture of all this and harnessing the powers, like you have taken the solar power, the wind power, and bring it in together to form the energy that we are talking about into the food, the happiness of the farmer, the chirping of the birds. The whole ecosystem has to resonate in what you grow, and this traceability right from the seed to the final product is what we are focusing on bringing from Jaivik farms to you. There are several techniques that we use in growing of our crops, and one of them you can see behind, that we don't use tractors and tillers to disturb the soil. Minimal movement of soil is done by humans so that the microbes that are there, that makes the soil alive, that is the essence and the spirit of the soil, is not exposed to overheating or direct sun to destroy them. So you can see how we prepare our soil. It is done by humans, and only the top surface, the carbon rich top surface, is moved away
to start our cropping. This area what you see is a model done for multi-cropping. There are different crops put together. There are creepers on the stands that you see, not similar but multi-type of creepers. There are vegetables that require shadows. They would be on particularly the down portion where there will be shadow from the creepers, and the raised portion will have a different set of vegetables. So it's going to this particular plot will have multiple varieties of vegetables linked by their roots, and hence this is to not only show how much of yield, quality, general, the nutritive value of the vegetables that will be grown here makes a difference. कुदरत ने जो मिट्टी बना के हमको दी है, जिसको 1 इंच मिट्टी बनाने में 500 से 1000 साल लग जाती है, वो मिट्टी को 5 महीने में कैसे बना सकते हैं, और वो भी 1 इंच नहीं 9 से 10 इंच कैसे बना सकते हैं, और उसका पद्धति क्या है, बिल्कुल नेचर का कॉपी, यानी नेचर जैसे मिट्टी को बनाती है। कार्बन रिच ह्यूमस सॉइल, उसको हम अमृत मिट्टी बोलते हैं। नई चीज़ों में हमने ये सीखा है लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। अभी पंचगव्य, पंचामृत, बीजामृत, इस तरीके का 8 मिश्रणों के साथ, उसके एक्सट्रैक्ट्स के साथ बना हुआ एक एक्सट्रैक्ट है जिसको लिक्विड कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। इसमें 7 ट्रिलियन माइक्रोब्स का होना टेस्टेड है, लेबोरेटरी टेस्टेड है, और ये लिक्विड होने के कारण इसमें अभी बहुत सारे जगहों पर सलाइनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से, अर्थ के हीट अप होने से, और सॉल्ट वाटर का इनग्रेस से, इवेपोरेशन से, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स से सॉल्ट्स रिलीज़ होते हैं। और इंडिया का कम से कम 2.5 to 3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ये प्रॉब्लम से जूझ रही है, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है बिकॉज गर्मी बढ़ रही है। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इफ़ेक्टिव है सलाइनिटी को रिपेल करने के लिए और ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स को जनरेट करने के लिए। और एक मटेरियल है जो कि खान से निकलती है, ओर से मट्टी है एक किस्म का, जिसमें सिलिका सिलिकेट्स का हाई कंटेंट होता है। डाइटमिशियस अर्थ बोलते हैं इसको, क्वारी से निकलती है। ये भी हमने बहुत ही इफ़ेक्टिव पाया है अर्थ को, सॉइल को पोरस बनाने में, उनका वाटर रिटेंशन को बढ़ाने में। जो सॉइल है उसको ऐड करने से ये नोटिस किया गया कि जितने फर्टिलाइज़र है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या खाद, उसको 50% कम कर सकते हैं। जितना पानी का जो सेवन होता है उसको, वो भी 50% कम होता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद, और पानी का जो किल्लत चल रही है इसको चलते ये प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम खेती कर सकते हैं 50%, 60%, 50% पानी के साथ। जो नॉर्मली 100 लीटर होना चाहिए वो 60 लीटर हो जाए, तो वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सब लोग ये पूछते हैं कि जैविक फार्म्स करने का जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई, और बात ऐसी है कि हमने प्रकृति से काफ़ी कुछ लिया है, काफ़ी कुछ प्रकृति ने हमें दिया है, कुछ हमने लिया है, कुछ वैसे ही हमारे पास अबंडेंस में आई है, बहुत मात्रा में। उसमें से कुछ प्रतिशत लौटाने का मेरा कोशिश है। 3 दशकों तक, यानी 30 साल तक भारत में, देश के कई शहरों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं इंटरनेशनल सिटीज़ में 5 सितारा होटल का निर्माण करने का काम मैं कर रहा था। और बचपन से ही दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं भारत के लिए कुछ करूं, प्रकृति के लिए कुछ करूं, पर्यावरण के लिए कुछ करूं। पर मेरा काम ऐसा था कि हर 3 दिन कहीं दूसरे शहर में जाना, ट्रैवल करना, तो टाइम बचता ही नहीं था कि मैं खुद फील्ड पे उतर के कुछ करूं। तो जब पिछले 4 साल से मैंने ये गांठ बांध लिया था कि मुझे टाइम निकालना है, और उस तरीके से मैं मियावाकी फॉरेस्टेशन में पहले उतर गया, यानी जितने हो सकूं, जहां हो सकूं, जंगल बांधूं। और जंगल बांधने का ये प्रक्रिया शुरू हुआ था 4 साल पहले, और आज तक करीब 3,20,000 पेड़ लग चुके हैं, उनके देखभाल हो चुके हैं, और वो
10, 12, 15 फीट, 20 फीट की ऊंचाई तक गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव था मेरे लाइफ में, जहाँ पे मैं 30 साल तक कंक्रीट के जंगल किया करता था। सिटीज़ में बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े इमारत खड़ा करने के बाद अब जाकर सही मायने में सही जंगल बना रहा हूँ, असली जंगल बना रहा हूँ। और इस जंगल को बनाते बनाते मेरा ध्यान गया कि हमको पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ता है, मिट्टी को ज़िंदा करना पड़ता है। और वो ज़िंदा मिट्टी को देखकर मेरे दिल में ये भावना इतना ज़ोर से आया कि वो पुराना ख्यालात कि हमको ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करना है, सेंद्रिय तरीके से खाद डाल, मतलब सेंद्रिय खाद के साथ काम करना है। और ये जो जर्नी था, इसमें कई बड़े आत्माओं के साथ मेरा परिचय हुआ। जीतूभाई खुटमुटिया जी, नीतूबेन पटेल और उनके जो गुरु थे दीपक भाई सचदे, इन सब के बारे में पढ़कर, उनका काम देखकर, उनका जो पर्यावरण में जो प्रभाव था उसको देखकर मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया और मैं ऑर्गेनिक जर्नी की तरफ निकल पड़ा। आई केम अक्रॉस टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट लाइक अमृत जल, अमृत मिट्टी। I came across terminologies like homotherapy. I came across several such things, but why and what it does to the soil, how it is to be performed, I learned from all these people. This launch that is going to happen now is not something that I started yesterday. It's a 4 to 5 year journey of experimenting with the soil, with the products, with the crops, and getting the best out of whatever we could. And hence we call our tagline naturally nurtured nutri-food. So what comes to you from us is going to be a nutri-food. You can replace medicines on a sustained long consumption of various products. We will bring medicinal value supplements to you. You don't, between food and medicines, there is a big world of supplements and extracts that act as permanent healers to several chronic ailments. And hence we are going to have an extensive wellness program. अभी लाइफ ऐसे बन गया है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ और अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, जिनका स्वार्थ बिल्कुल कम होता है। उनको कम्युनिटी बिल्डिंग और फार्मर के इनकम्स को या लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, ज़मीन के क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सलाइनिटी को रिपेल करना या पेस्टिसाइड और कीटनाशक का जो असर है उसको कम कराना, ज़मीन को उपजाऊ बनाना और प्रकृति को फिर से वापस देने वाले ऐसे बहुत लोग जुड़ गए हैं। तो फॉरेस्ट क्रिएटर्स के साथ, फॉरेस्ट क्रिएटर्स एक NGO है जो फॉरेस्ट लगाने का काम करती है और शुरू होने के बाद आज तक शायद 16 से 20 लाख पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। आज के तारीख में वो लोग हम लोग 5 लाख के ऊपर पेड़ लगवा रहे हैं। उसके अलावा हमने जैविक फार्म का गठन किया जो ऑर्गेनिक फूड, और ऑर्गेनिक फूड के अलावा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भारत का जो भूमि है इसमें मेडिसिनल प्लांट्स का जो है बहुत ऊबर रिच किंगडम है मेडिसिनल प्लांट्स, पर इंडियंस ने उसका कभी यूज़ नहीं किया जितना कि फॉरेनर्स ने कर लिया। योगा बोलो तो जर्मनी में ज़्यादा होता है, संस्कृत सिखाते हैं तो जर्मनी में सिखाते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अभी ये टीम जुड़ गया है जीतू भाई के साथ, नीतू बहन के साथ, चिराग भाई के साथ, जीतू भाई और एक जीतू भाई के साथ, सबके साथ मिलके इतने सारे लोग अभी जुड़ गए हैं that I feel that there is nothing to stop us to being the best in the world, to represent the best, to do the best work in the field of organic food and wellness program, which is actually traceable back to the seed where it started from. Every stage, soil preparation से लेके सीड की सिलेक्शन, उसका बोने का जो तरीका है, वहाँ से लेके जो फार्मर ने उसको बढ़ाया, टोटल ट्रेसेबिलिटी के साथ हम सर्टिफिकेशन कराकर दुनिया के सामने भारत का प्रोडक्ट रखेंगे। और ये हमारा एंडेवर है कि पूरे दुनिया में नंबर 1 पर पहुँचे और पूरी दुनिया भारत को ये प्रोडक्ट को लेकर बेंचमार्क करे कि ये क्वालिटी होना चाहिए, ये ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए और ये इस तरीके से काम करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ। वो हम चाहते हैं। ये जस्ट इट्स नॉट अ कमर्शियल वेंचर ओनली। यस, मनी इज नीडेड बाय एवरीवन टू रन द शो, but our
larger interest is in the values, in making the food with the right nutritional values, which will stun people. I mean, और ये प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद के साथ बहुत ही जल्द जैविक फार्म्स आपको रिटेल में, ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट्स दिखाई देगी। और इसके अलावा हमारे ज़मीन के साथ जुड़ी हुई काफ़ी मूवमेंट्स चलेंगे। जहाँ पे सैलिनिटी है वहाँ पे सैलिनिटी कम करने का जो प्रयास है, उन लोकल टीम्स के साथ, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम उसमें एक हिस्सा रहेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी जंगल बनाने का काम हो, ऑर्गेनिक फूड की बात हो या वेलनेस की बात हो या प्लांट के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट्स निकालने, हम लोगों के साथ जुड़कर एज ए कम्युनिटी, एज इंडिया, वी विल ग्रो, एंड दैट इज़ वाई we have formed Jaivik Farms.